ہندو شیڈول کاسٹ وہ کمیٹی ہے جنہوں نے کا پاکستان بنانے میں اہم کردار ہے. قائد اعظم کی کیبنٹ میں قانون کا پہلا منسٹر ہمارا تھا جوگیندر ناتھ منڈل جی, اور ہمارے بڑوں نے آج بھی یہاں پہ رہنے کو ترجیح دی ہے. ہندو برادری میں 95% جو ہندو شیڈول کاسٹ کمیٹی, سی ایس سی کمیٹی الگ ہی بات ہے, جسٹ ممبرشپ ہی شیڈول کاسٹ کو نہیں دیتا. ہمارے شیڈول کاسٹ کے حقوق کو انسان ہی نہیں سمجھتے. ہمارے لوگوں کو اپنے مندروں میں گھسنے نہیں دیتے, وہاں پہ ان کے لیے کھانے پینے کا سسٹم ہی الگ انہوں نے رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین, پاکستان میں اقلیتوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, لیکن اقلیتوں کے اندر کے جو مسائل ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سرون کمار بھیل. تھر کے علاقے سے ان کا تعلق ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہندو برادری میں سے جو براہمن ذات کے لوگ ہیں ان کو ٹکٹس دیتی ہیں مخصوص نشستوں کے لیے, جبکہ جو کثیر آبادی ہے وہ شیڈیول کاسٹ سے تعلق رکھتی ہے, ان کی نمائندگی ایوان میں نہیں ہوتی. مطلب اقلیتوں کے مسائل اور پھر اقلیتوں کے جو اندر کے مسائل ہیں وہ بھی کافی گھمبیر ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سرون کمار بھیل صاحب سے کہ یہ معاملہ کیا ہے, لیکن سب سے پہلے ان کا تعارف کرا دوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور انصاف لائرز ونگ کے یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سر, تھوڑا سا مسئلہ سمپل وے میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایکسپلین کیجئے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کی جو پرومیننس ہے وہ کیا ہے, اہمیت کیا ہے. جے شری رام. پاشا صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے بہت اہم حصے و طبقات کے اور اہم سینسٹیو ایشو کی طرف آپ نے جو ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے توجہ دی. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور گزارش کروں کہ میرا تعلق ہندو شیڈول کاسٹ کمیونٹی سے. عرض کروں, ہندو شیڈول کاسٹ وہ کمیٹی ہے جنہوں نے کا پاکستان بنانے میں اہم کردار ہے جی. اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. قائد اعظم کی کیبنٹ میں قانون کا پہلا منسٹر ہمارا تھا جوگیندر ناتھ منڈل جی. جی. اور ہندو شیڈول کاسٹ کی ٹوٹل 40 ذاتیں ہیں, جس طرح میں بھیل ہوں, کولی ہے, مینگواڑ ہے, جوگی ہے, جنڈاوڑے ہے, سانسی ہے, سامی ہے, کبوترے, باگڑی, والمیکی, اوڈ وغیرہ اس طرح کی کمیونٹیز ہیں. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہم سن آف سوائل ہیں, مارجنائز کمیونٹی کے لوگ ہیں, دھرتی کے اصل وارث ہیں اور ہم دفنانے والے ہندو ہیں. یعنی آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں, بالکل ہم دفناتے ہیں, اور ہمارے بڑوں کی ہڈیاں دفن ہیں اور ہماری دھرتی ماتا سے محبت ہے, اور ہمارے بڑوں نے ہی پاکستان بنایا تھا اور ہمارے بڑوں نے آج بھی یہاں پہ رہنے کو ترجیح دی ہے. جی. تو یہ جو آپ کا یہ ایشو ہے جو اس وقت بڑی اہمیت بھی اختیار کر گیا ہے, کیونکہ اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کر رہی ہیں ساری سیاسی جماعتیں. آپ کہتے ہیں کہ سارے جو ٹکٹس ہولڈر ہیں وہ خواہ نون لیگ کے ہوں یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ہوں, وہ سارے براہمن ہیں اور آپ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی. یہ درست بات ہے؟ بالکل پاشا صاحب, میں عرض کروں گا جس طرح پہلے سیپریٹ الیکشن تھی مشرف صاحب کے ٹائم سے پہلے, تب ہمارے 4 ایم این ایز آتے تھے, ہم اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرتے تھے. جس طرح ہمارا کرشن بھیل صاحب بھی ایم این اے آیا, کھٹو مل مینگواڑ صاحب بھی آیا, پارو مل کولی صاحب بھی آیا, گلجی مینگواڑ صاحب بھی آئے. یہ ہمارے شیڈول کاسٹ ہندو کمیونٹی کے جن کا ہمارا ہندو برادری میں 95% ہماری آبادی ہے, اور ہم اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرتے تھے. اس وقت ہمارا حلقہ تھا نیشنل اسمبلی کا, پورا پاکستان حلقہ تھا, پورے پاکستان کے لوگ ان کو ووٹ دیتے تھے, اور صوبہ اسمبلی کا پورا صوبہ تھا. تو ہم اپنے نمائندے کو خود منتخب کرتے تھے. مشرف صاحب کے ٹائم کے بعد میں جب سے ریزرو سیٹیں رکھی گئی ہے, انہوں نے ہمارے حقوق پر بڑا ڈاکہ ڈالا ہے. عرض کروں گا ہم سن آف سوائل ہیں. اس وقت جو انویسٹر ہیں, ایک ہی دادے کے انویسٹر پوتے پاکستان کی سب سیاسی پارٹیوں پر قابض ہیں. میں آپ کو گزارش کروں, جس طرح ایک میرا تعلق پی ٹی آئی سے, ایک پی ٹی آئی کا سینٹرل کا پریزیڈنٹ تھا منارٹی ونگ کا, جے پرکاش اوکرانی, وہ بھی لوٹا ہو گیا, سب کو پتا ہے. اس کا بھائی وہ ریزرو سیٹ پہ پی ٹی آئی سے ایم این اے بنا. اس کا بھائی لال چند اوکرانی پیپلز پارٹی منارٹی ونگ کا پریزیڈنٹ, وہاں سے ریزرو سیٹ پہ ایم پی اے بنا. ان کا ماموں کھیل داس کوشتانی, وہ بھی منارٹی کی ونگ کا وہاں پہ ریپریزنٹر ہے نون لیگ میں, وہاں پہ مخصوص سیٹ پر ایم این اے بنا. ان کا ایک اور ہے اپنا نند کمار گوکلانی, وہ بھی منارٹی ونگ جی ڈی اے کا فنکشن لیگ کا پریزیڈنٹ منارٹی ونگ کا, ریزرو سیٹ پہ ایم پی اے بنا مسلسل 10 سال تک. اور اس وقت ان کو جی ڈی اے نے
MN शिप पे भी नामजद उसको किया है और उनके साथ साथ MP शिप पे भी उनको नामजद किया है। इसी तरह MQ का भी संजय पारवानी मिनाटी विंग का प्रेसिडेंट, उनको भी रिजर्व सीट पे पहले भी वो MN रह चुका है, उसके बाद में MP भी रह चुका है, इस वक्त दोबारा भी उनको MP शिप पे भी रखा है। जी जी। और उनके साथ साथ मैं गुजारिश करूं, जिस तरह एक मशहूर बंदा जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में कलाबाजियां खाता है, जिनको लोटा भी कहें, मशहूर है, हिंदू मजहब का ठेकेदार भी बना हुआ है, जी जी। वो PTI से लोटा होकर दूसरी पार्टी में पीपल्स पार्टी में चला गया। पीपल्स पार्टी ने उनका नाम रखा है तीसरे नंबर पे। जी जी। बदकिस्मती उसका सुसर वो नाम क्या उनका? और रमेश कुमार वांकवानी हर जगह पे कहता है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का ठेकेदार बना हुआ है। हकीकत बताऊं, हिंदू का बिरादरी में 95% जो हिंदू शेड्यूल कास्ट कमेटी है, उनको तो कोर कमेटी अलग की बात है, अपना CSC कमेटी अलग ही बात है, जस्ट मेंबरशिप ही शेड्यूल कास्ट को नहीं देता। हर जगह पे ये कहता है कि मैं हिंदू काउंसिल का चेयरमैन हूं। हमें तो उसका आज तक ग्रास रूट पे कोई काम नहीं दिखा। हम प्रॉपर थरपार करके, वो हमारे थरपार करके लायक का है। आज भी आप देख लें, खुदकशियों का रेशियो ज्यादा से ज्यादा थरपार करके अंदर है। बच्चों की अमवात ज्यादा भी गूगल में सर्च करके देखें, थरपार करके अंदर है, उस हिसाब के हल्के से है, और वो बड़े बड़े भाषण देता रहता है। उनका सुसर MQ की मिनाटी की रिजर्व सीट पे फर्स्ट नंबर पे रहे। वो कहते हैं आंधा बांटे रेवड़िया, वो भी अपनों में। बिल्कुल। और इन्होंने भी स्कॉलरशिप का भी कुछ ऐलान किया था, वो उसमें भी सारे कराची के लोग अपने लोगों को, शागिर्दों को स्कॉलरशिप दी है। हमारे शेड्यूल कास्ट के हुकूक को इंसान ही नहीं समझते। रियल में आपको बताऊं बादशाह साहब, हमारे लोगों को अपने मंदिरों में घुसने नहीं देते। शेड्यूल कास्ट के लिए आज भी जी जी। खाने पीने का जो सिस्टम है ना, जी जी। कोई लंगर वगैरह लगता है, पहले तो उनको घुसने नहीं देते। बदकिस्मती लोग बेचारे हमारे मजबूर कहाँ जाए, आजकल महंगाई सिस्टम ऐसा लगा पड़ा है, वो फिर भी हमारे लोग कहते हैं हम जाते हैं अपना वहां पे, उनके लिए खाने पीने का सिस्टम ही अलग इन्होंने रखा है। VIP जिनका कल्चर है, जो सो कॉल्ड अपर क्लास हिंदू है, उनके लिए 20-20, 25-25 आइटम बाकायदा टेबल इनके लिए सजती है। हमारे लोगों के सिर्फ चाल और दावल के लिए, उनमें के भी इनके लिए कतारें लगाई होती है, अखबार के पन्ने में देते रहते हैं। हमारे लोगों को इंसान ही नहीं समझते हैं। और इस हकीकत बताऊं कि जब से रिजर्व सीटें रखी, उन्होंने हमारे जो लोग हैं उनमें एहसास कमतरी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने बताया, जिस तरह के ये ब्राह्मण जो ज़ात के लोग हैं वो सारी सियासी जमातों के ऊपर काबिज़ हैं, वजह क्या है इसकी? वजह क्या उनके पास पैसा ज़्यादा है, या ये है कि वो एक नफ़रत का एहसास है शेड्यूल कास्ट के लिए, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता? वजह क्या है इसकी बुनियाद? सब अर्ज़ ये करूँ कि हमारे तो फ़ख्र की बात है, हम धरती के असल वारिस हैं, सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं जी। और दूसरा है कि हम दफनाने वाले, हमने गुजारिश की कि हमारे मजहब के अंदर, मैं आज भी बड़े फखरिया से कहता हूँ, हमारी शिवरी माता शिवरी भीलन थी, जिनके झूठे बेर भी श्री राम ने खाए थे। वो भी शिवरी भील कम्युनिटी से थी। मजहब में हमारी बड़ी खिदमत है। श्री राम के टाइम पे जो जिन्होंने बनवास काटा था, उनके साथ साथ उनका श्री राम जी का जो अपना गुरु था श्री वाल्मीकि जी था, ऋषि वाल्मीकि जी, जिसने श्री रामायण लिखी है। बिल्कुल, इनसे तो ज्यादा मजहब में हमारी खिदमत है। बस कितने हमारे लोगों को आज तक गरीब हैं, इन्वेस्टर नहीं है, ATMs नहीं है। ये एक ही दादे के इन्वेस्टर पोते हैं। दूसरे, मैं अपनी PTI की बात नहीं करता हूँ, हमारे महबूब लीडर इमरान खान साहब को इन चीज़ों का इल्म भी नहीं था। जब मैंने सारी कहानी बताई तो उसने बताया ये बड़ा नानसाफी हो रही, मुझे पता ही नहीं है। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टियों के चेयरमैन हैं, जो जरदारी या नून लीग वाले, ये तो करप्शन के माहिर हैं। इनको दंदोड़िया लोग इस तरह के चाहिए जो इन्वेस्ट भी करें, खुद भी खाएं, इनको भी खिलाएं। आप तारीख देख लें, ज्यादा से ज्यादा आजकल मसाइल भी सिंध के अंदर है। पीपल्स पार्टी से जब से गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम ही नहीं किया है। और खास तौर पे इस वक्त मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने PTI से हटकर MP शिप पे भी इन सो कॉल्ड अपर क्लास के हिंदू इन्वेस्टरों के नाम दे दिए हैं। सूबाई असेंबली में और नेशनल असेंबली में भी तमाम यही लोग आ गए हैं, एक ही दादे के पोते इन्वेस्टर। शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा नहीं है। सूबाई असेंबली की सिंध की निशस्त टोटल 9 है। जी जी। हमारे शेड्यूल कास्ट के एक बंदा था, उसको 10वें नंबर पे उनका नाम दे दिया। अभी देखें सर, टोटल सीटें 9 है, 10वें नंबर पे वो कैसी सीट निकलेगी उन शेड्यूल कास्ट को? मकसद वो तो बिल्कुल, हमें तो सियासी पार्टियों को भी अच्छे इन्वेस्टर चाहिए, हमें इंसान ही नहीं समझते। उस वजह से हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं सर। अच्छा, थरपारकर में आपकी अक्सरियत है और सिंध हुकूमत तो कहती है जी कि हमने वहाँ पे बड़ा काम किया है, हमने वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? और आप ख़ास तौर पे इस नुक्ता नज़र से बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की तादाद सबसे ज़्यादा है थरपारकर के अंदर, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर, मैं गुजारिश करूं कि जितनी तबाही पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है पूरे सिंध के अंदर, साथ साथ थरपारकर का भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया। RO प्लांट एशिया का बड़े में बड़ा लगा हुआ है। अभी भी देखें, आप गूगल में सर्च करेंगे, वो नाकारा बना हुआ है। करोड़ों रुपए भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, वो सारा जरदारी लीग ने खत्म कर लिया। दूसरा थरकोल है, इस वक्त बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट थरकोल है। उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, हिंदू गरीब जो वहाँ के मकामी हमारे मुसलमान भाई भी है ना, उनको भी कोई इंसान का दर्जा बेहतर, उनको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती। इतने तक वहाँ के पट्टे वाले, और मुझे नहीं कहना चाहिए, वहाँ पे जो दूसरे भी जो लोग हैं ना,
बोर्ची वगैरह वो भी दूसरे सूबों से आते हैं, उनकी ठेकेदार भी कोई और है, मकामी लोगों को कोई किस चीज़ की वहाँ से फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आप का जो एक पार्लियामेंट के अंदर जाना है किस तरह से मुमकिन हो सकता है, किस तरह से आपकी पार्टिसिपेशन, क्या निज़ाम बनाया जाए, क्या मैकेनिज़्म बनाया जाए कि ये जो कब्ज़ा है ब्राह्मणों का हिंदू रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ये किस तरह से कम हो सकता है? सर अर्ज ये करूं कि ये असेंबली में जब कानून अपना पास होगा, उसके अंदर एक तो बदकिस्मती है कि हमारे लोगों को ये नज़दीक आने नहीं देते। दूसरा इस वक्त ये भी हमारे लिए इजाज़त की बात है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर किसी इन्वेस्टर अपर क्लास के सो कॉल्ड हिंदू को हमने अभी तक एडजस्ट होने नहीं दिया। ये सारी हमने कहानी चेयरमैन साहब को भी बताई है, अभी मौजूदा चेयरमैन गौर साहब, इनको भी मैंने गुजारिश की है कि वोट हमारी शेड्यूल कास्ट का है। फिर इन्होंने भी जो सिंध असेंबली की जो मखसूस निश्चित मिनारिटी की, उसमें भी हमारी शेड्यूल कास्ट के बंदे का नाम दिया है। और यहाँ पे भी जो दूसरे नाम है वो अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किए नेशनल असेंबली के लिए, इसमें मैंने भी अप्लाई किया है। मैंने भी गुजारिश की है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा राइट बनता है शेड्यूल कास्ट का। हम यहाँ पे बैठ कर पूरे पाकिस्तान में आजकल जो हमें शफा मिल रही है, हमारे लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी हुई है कमीशन, मिनारिटी कमीशन, जिसके चेयरमैन डॉक्टर शुएब सडल साहब है। तो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हमारे डॉक्टर शुएब सडल साहब के पास वहाँ पेश होते हैं। सडल साहब की मेहरबानी से वो मसाइल हल हो रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर पूरे पाकिस्तान के पिछड़े हुए तबकात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो एक दो आप कोई बता रहे थे किस तरह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, किस तरह से आपको एलियनेट किया जाता है, वो ज़रा बताइए कि जो आप एक बता रहे थे कि वकील साहब जो हैं वो पेश नहीं होते। सर मैं गुजारिश करूँ, वो हाई कोर्ट की बड़ी रिपोर्ट है, हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच की। जी। तो हमारे मैजिस्ट्रेट थे नंगर पार्क करके मुसलमान भाई मैजिस्ट्रेट थे, उनने रिपोर्ट वो पेश की थी। एक हमारे वकील हैं ठाकुर बरादरी के, अपना डिस्ट्रिक्ट मिठी के, और एक हमारे लोगों पे मेहनत पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के से ही बेहतरी आएगी, चेंजिंग आएगी। हमारे शेड्यूल कास्ट का बंदा मेंगवाड़ कम्युनिटी का मैजिस्ट्रेट है छाछुरों के अंदर, वो ठाकुर जो अपना वकील था, वो क्या करता था कि अपने मुंशी के साथ केस वगैरह भेजता था दाखिल कराने के, उनके जो भी उनके जुरिडिक्शन के केस होते थे वहाँ दाखिल करा के फिर सेशन कोर्ट में केस ट्रांसफ़र का दरख्वास्त देता था कि ये मेरा केस ट्रांसफ़र करा जाए। फिर उनका किसी और से मसला हो गया, फिर हाई कोर्ट ने उनकी इंक्वायरी कराई, तो उससे पता चला, हमारे मैजिस्ट्रेट मुसलमान भाई ने वो रिपोर्ट बनाई, उसने ये पता चला कि ये ठाकुर कहता है कि वो मैजिस्ट्रेट मेंगवाड़ कम्युनिटी का है, शेड्यूल कास्ट का है, मैं उनको माय लार्ड कैसे जाके कहूँगा। वो ब्राह्मण कल्चर आज भी हावी है सर, ठाकुर कल्चर हावी है। इनकी वजह से हमारे इवन इतने तक अर्ज करूँ कि हमारे लोगों को खाने पीने के लिए भी उनके बर्तन अलग रखे हुए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की आपको गुजारिश करूँ, वहाँ सेशन कोर्ट के अंदर चौदीवारी के अंदर कैंटीन है, उसके अंदर भी लिखा हुआ कि ये गैर मुस्लिम उनके लिए बर्तन अलग है। हमारे लोग वहाँ पे खा पी भी नहीं सकते हैं, हम धरती का सुलवार से हैं, सन ऑफ सॉइल है, इस तरह के मसाइल हैं। और ये सो कॉल्ड अपर क्लास के हिंदू ने के जो ठेकेदार हमारे बने हुए हैं, एमपी भी है, एमएनए भी हुए हैं, नेशनल कमीशन के चेयरमैन भी बने हुए हैं, पाकिस्तान हिंदुओं की मंदिर मैनेजमेंट कमेटी बनी, उनके से भी सदर ये बने हुए हैं। इन्होंने कभी हमारे इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मजहबी तौर पे भी आपको तफरीक मिलती है? सर बिल्कुल मिल रही है ना। ये जो 5% जो है ना, ये इन्वेस्टर एटीएम से, ये हमारे हुकूक पर यही काब्ज़ हैं, और ये इनकी वजह से हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। हर चीज़ पे ये बता रहे थे कि मंदिरों की कमेटी के भी मैं गुजारिश करूँ, हमारे नूरुल कादरी साहब के टाइम पे पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, जिनका सदर भी हमारा किशन शर्मा साहब जो ब्राह्मण है, वो उनका सदर है, और मेंबर भी वही हैं। हमारी जो शेड्यूल कास्ट का मैं गुजारिश करूँ, सिंध में इतनी हमारी पॉपुलेशन है, आज भी हमारे फैसला कौन वोट सिंध के अंदर शेड्यूल कास्ट के हैं, कोई बंदा मेंबरशिप नहीं है। उसके लिए मैंने डॉक्टर शुएब सडल साहब को दरखास्त गुजारिश की, हमारे जो मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री, इनकी इतनी नाहली है वफा की मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री की, उन्होंने पहले रिपोर्ट ये दी कि शेड्यूल कास्ट वाले लोग हिंदू ही नहीं है। वो भी रिकॉर्ड मेरे पास पेपर पड़ा है। तो फिर मैंने सडल साहब को भी गुजारिश की, हमारा डीजी था डायरेक्टर जनरल कासम खान साहब, उनको भी कहा सर ये देखें आप नादरा में सर्टिफिकेट मंगाएं, आज भी हमारे सर्टिफिकेट्स पड़े, उसमें हम हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हिंदू शेड्यूल कास्ट हैं। फिर मैंने बोला सर सेंसस में हमारा खाना अलग है। तो उसके बाद में दोबारा उनको बोला ये तो हिंदू आप कैसे कह सकते हो। बाद में उनकी रिपोर्ट आई, तो जहाँ पे हमारे कोई हिंदू नहीं है उनके हवाले से कहा कि नहीं, ये वैद में उन्होंने माना कि वाकई ठीक है, ये है और ये लोअर क्लास है। मजहबी अमूर की रिपोर्ट आई, उनके साथ साथ सेंसस वालों मर्दमशुमारी की जो अभी लास्ट 2023 की हुई है, इसके अंदर भी डॉक्टर शुएब सडल साहब की मेहरबानी से उन्होंने तकरीबन 5-6 के करीब उनकी मीटिंग्स की, जो हाई अथॉरिटी से उनको अपनी ऑफिस में बुला के उनको हुक्म जारी किया। सेंसस के अंदर हिंदू पहले शेड्यूल कास्ट लिखते थे, उनको लिखो हिंदू शेड्यूल कास्ट और हिंदू जाति, ये लिखो खाने के अंदर। तो उससे अभी सेंसस में मतलब ये बता रहे थे कि वो जो आपकी मंदिरों की कमेटी है, उसके जो करता धरता हैं वो भी ब्राह्मण हैं, तो वो आपको एलियनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बिल्कुल मैं सर मैंने गुजारिश की कि उनका जो पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट जो कमेटी बनी, उनका सदर भी किशन शर्मा ब्राह्मण है, हिंदू है,
मेंबर भी वही हैं, हमारी शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा मेंबर भी नहीं है। दूसरा है कि अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी जी जी, जो बड़े आजकल अरबों खरबों रुपए अच्छा, इनके मंदिर अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं? मंदिर सारे हमारे एक ही जैसे एक ही हैं। अच्छा। पर बदकिस्मती कि हमारे अपने जिस तरह ये शहरों में रहते हैं इनका वीआईपी कल्चर, हम गाँव गोठों के लोग हैं, झुपड़ी में रहने वाले, उन्होंने भी अपने गाँव के अंदर घरों के अंदर भी झुपड़ी बना के भी अपने मंदिर अपने ईश्वर को याद करते हैं। जी बिल्कुल। और ये जब शहरों में इस तरह आते हैं, हमारे लोगों को अपने मंदिरों में हकीकत बताऊं घुसने भी नहीं देते हैं, उनके बड़ा उनसे एक दूसरी नज़र से देखा जाता है। और दूसरा है कि पाकिस्तान की जो अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बनी हुई है, इनमें भी अरबों रुपए की इनकी करप्शन हुई है। अभी सदर साहब ने मेरे ख्याल में 30 अरब से ज़्यादा इनकी करप्शन रिकवर कराई है, उनकी रोकी है। अच्छा, सिंध में भील साहब एक और बड़ा मसला है, वो है फोर्स कन्वर्जन का। हम सुनते रहते हैं अखबारों में, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, और ये बड़ी इस पर ख़बरें आती हैं कि जो लड़कियां हैं कम उम्र, उनको इस मसले का जो ज़्यादा शिकार हैं वो शेड्यूल कास्ट है या अपर क्लास है, ये क्या? सर अर्ज़ ये करूँ कि इनसे तो दोनों शिकार हो रहे हैं। ज़्यादा अक्सर तो हमारी हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। शेड्यूल कास्ट हिंदू की टोटल मैंने कहा कि 40 जाते हैं और हिंदू बरादरी में 95% हमारी आबादी है। जी जी। और अर्ज़ करूँगा हम खुद ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, वकील भी हैं। हम कहते हैं जब हर इंसान को अपनी आज़ादी है, अपना किसी मज़हब में जाए, कहाँ किससे शादी करे, उसकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल। पर मर्जी तब शुरू होती है जब उनका NIC बनता है, शनाख्ती कार्ड बनता है, जब उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, बालिग हो जाते हैं, बालिग होता है, जब उनकी 18 साल उम्र होती है। और बदकिस्मती के हमारे सिंध के अंदर चाइल्ड मैरिज एक्ट बना हुआ है, पर ये हमारी जो गैर मुस्लिम बच्ची हैं उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। 14 साल 15 साल 12 साल इन बच्चियों को किस तरह बरगला के सुनहरी ख्वाब दिखा के उनको क्या कहते हैं उनका मजहब चेंज किया जाता है। ये बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं बंदे की अपनी 18 साल उम्र हो, किस मजहब में जाए उसकी अपनी आज़ाद मर्जी है। उनके साथ दूसरा अर्ज करूं, फिर वो बच्ची सारी उम्र अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकती। ये भी आप देखें, जिस तरह काफ़ी जो इश्यूज़ हैं, जितनी बच्चियां गई है अभी तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है, पता नहीं फिर कहाँ होती है, क्या होता है, किस साइड पे जाती है। तो हम चाहते हैं इन मसाइल की वजह से, क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट के मसलों को कोई मसला नहीं समझता, इनकी वजह से लोग हमारे ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। ये भी अभी आप देखें कहीं से भी देखें, रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, या मीरपुर खास डिवीज़न के अंदर जो पासपोर्ट भी ऑफिस बनी है उससे भी रिकॉर्ड लेना है। मैं तो जहाँ भी एहतजाज मुजाहरे धरने होते उसमें हमारे काफ़ी जो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सबको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारे अहम इशू की तरफ आप तवज्जो दें। हमारे लोग पड़ोसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे पनाहगीर बनते हैं, फिर हमारे लोगों के इन मसाइल की वजह से मोदी सरकार को बोलने का मौका मिलता है। ये हमारे लिए मैसेज अच्छा नहीं जाता इंटरनेशनल लेवल पे। हम तो कहते हैं हम धरती के सलवार से हमारे लोग पनाहगीर क्यों बने। बिल्कुल सही बात। तो उस तरह हमारे अहम इशू इस पे तवज्जो दी जाए, चाइल्ड मैरिज एक्ट पे अमल कराया जाए। 18 साल का बंदा है, किसी मजहब में जाए, उनकी अपनी मर्जी है। और दूसरा है कि हम तो बड़े फख्र से कहते हैं हमने बरतानी से आज़ादी ले ली है, पर जिस खेते से हम बिलोंग करते हैं आज भी वडेरा शाही है, निजी जेलें, जबरी मशक्कत ली जाती है, और हम धरती का असुलवार से हमें अपनी धरती पर अपना सिर छुपाने की झुपड़ी की भी जगह हमें नहीं मिलती। बिल्कुल। तो इस सवाल से ये इशू है। आप देखें मन्नू भील का केस है, जिसको 1998 से उनके घर के 9 अफराद अगवा हुए हैं, आज 25 साल हो गए, आज तक उनके घर का एक अफराद बाजियाब नहीं हुआ है। जो अपर क्लास के जो हिंदू हम पे मुसलत किए जाते हैं, इन्होंने हमारे इश्यूज पर कभी बात नहीं की है, मन्नू भील के मसले समेत कोई किसी बात नहीं की है। जी जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आप बताइए कि हल क्या है, किस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सर हमें एक तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत जो पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, उनको विनती करते हैं, खुदारा हम धरती का सलवार से हमारे अहम इशू की तरफ तवज्जो दें। दूसरा कि रिजर्व सीटें ये शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी को दी जाए, और तीसरा कि हमें डबल वोट का हक दिया जाए, हम अपने नुमाइंदे को खुद मुंतखब करें। सही। ये जो हम पे मुसलत किए जाते हैं, ये सियासी पार्टियों के इन्वेस्टर होते हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, और ये अपना कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। इनके साथ साथ हमारे मसाइल पे जो अहम सेंसिटिव इशू है, हम कहते हैं सिंध के अंदर जागीरदार हैं, ये जागीरें तोड़ी जाए, बेजमीन किसानों को ज़मीनें दी जाए। जी जी। तो जिस तरह धरती का सलवार से कम अपनी धरती पर हमें सुर छिपाने की जगह तो हो कम से कम, इस तरह की जो इशू। दूसरा है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन आम की जाए, और उनके साथ साथ हेल्थ की फैसिलिटियाँ दी जाए। जी जी। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये कि भिखारी लोगों को बनाया जाता है। जी जी। इस तरह में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बनाई जाए। बिल्कुल। तो इस तरह बेहतरी होगी सर। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के, लेकिन बाज़ ऐसे मसाइल हैं जो नज़रों से ओझल रहते हैं और हमें उनकी सेंसिटिविटी का एहसास नहीं हो पाता। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी आबादी है सिंध के अंदर, और बाकी मुल्क के अंदर भी उनकी प्रेजेंस मौजूद है, और उनके मसाइल जो हैं उनकी नौइयत के बारे में हम लोग सेंसिटिव नहीं हैं इतने ज़्यादा। लेकिन सियासी जमातों को ये समझना चाहिए,
ان مسائل کو اور دیکھنا چاہیے کہ کس جو طبقے کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ کم ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ایک مین سٹریم کے اندر لے کر آیا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.